make veg Manchurian try. ठीक है बस. I very much love this country. Namaste भैया. नमस्ते खोटे सर और दो भेलपुरी. दो भेलपुरी. तब इटली का डिप्लोमेट भारत आकर 24 घंटों के लिए सिर्फ इंडियन फूड खाता है. मतलब इटालियन डिप्लोमेट आए हुए हैं भारत में. We ordered veg Manchurian. Excellent choice, Julia. This is very good. I love the fact that it's not too spicy. In India, the country is beautiful and people are amazing. सो जो भेलपुरी है, मैं एक्चुअली बताऊं जितने भी इंडियन फूड है ना, मेरा दिल करता है कि मैं मतलब पाकिस्तान में हालांकि कुछ मिलते हैं बट मुझे लगता है कि ऑथेंटिक टेस्ट जो है ना वो आपको नहीं होता बिल्कुल. इंडियन से ही खाने को मिलेगा. वो Very good. Can I have another one? Please go. Are you enjoying? It's amazing. My first time. Let me try it out first, so I can give you all the ingredient list. But it looks really yummy, so. Wow. This might be the best bhelpuri I've ever tried. I'm not kidding. उसके बाद मैं ग्रिल्ड सैंडविच की बात करना चाहूँगी, पनीनी की बात करना चाहूँगी. ये ऐसी चीज़ है ना जो हमें यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती स्ट्रीट फूड में, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर पाते. इसके लिए ये हमारे लग्जरी आइटम्स हैं. लग्जरी है. And it didn't drive me crazy. This one is very good. Very delicate. A sandwich that could be Italian because you have tomatoes, you have onion. So it's a kind of a summer sandwich that you could have in Italy. So thank you so much for taking me here. Of course. So I'm gonna try the panini. ये खानों के बारे में बात कर रहे थे और इनफैक्ट ये भी बोल रहे थे कि जब वो जाएंगे अपनी सर्विस कंप्लीट करने के बाद तो बिल्कुल, वो तो मिस करेंगे. बहुत ज्यादा मिस करेंगे. और मुझे वाकई में इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी. उन्होंने सही कहा कि चाहे कोई कंट्री कितना भी खूबसूरत हो, वहाँ के अगर लोग अच्छे ना हो तो आपको वहाँ पर इतना दिल नहीं लगता. लेकिन इंडिया जो है वहाँ वो कंट्री भी खूबसूरत है और लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं. और रीज़न यहाँ पे ये तो ये है कि कोई आ जाए तो बेचारे का तो हरासमेंट कर करके उस बेचारे का तो बुरा हाल कर देते हैं. खाना जो है ना इंडियन खाना आपको मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट खाना दुनिया का है इंडिया का खाना. और मैं कहता हूँ हम तो देख देख के हमारे मुंह में पानी आ रहा है. इतने प्यारे खाने हैं. नो डाउट बहुत ज्यादा पाकिस्तानी फूड बेटर हो सकता है इंडियन फूड से अगर हम उसको प्रमोट करें तो. You really gave me an incredible experience because food was original, was different. What I really liked was the bhelpuri because it was the most original dish we have had. I believe. Hey guys, Julia here. We have Alessandro, the guest star today. Alessandro is the Consul General of Italy here in Mumbai. We ordered veg Manchurian. This is a really famous dish from the Indo-Chinese cuisine. A lot of people are a fan of Indo-Chinese cuisine here in India. Myself too, Shrey too. So today we are trying veg Manchurian. Let's try it out. Okay, let's start. They have taken the dry version, but there is also the version with the gravy. You try first. Very much similar to the Chinese cuisine I used to eat while in China, even though it's true that there is also a slight touch of something else that remembers me of India. So, excellent choice, Julia. This is very good. Start with bhelpuri because you are the guest star for us. Okay, let me try. Very good. Can I have another one? Please go. Are you enjoying? It's amazing. My first time. Let me try it out first, so I can give you all the ingredient list. But it looks really yummy, so. Wow. This might be the best bhelpuri I've ever tried. I'm not kidding. Thank I you. can't stop. Wait a second. Yeah, you can stop. You can stop. So these are rice puffs. I don't know if you can see. They create a chutney, they mix it and they put inside onion, coriander, and these are like the sev. These are basically like fried snacks. Oh. And they are made of chickpea flour. Everything becomes like the best combination because you have the crunchiness on top, and then you have the sogginess of the rice puffs, and then you have the creaminess of the chutneys, and then they create this blade and it's just like amazing. Tell me, are you natural or you studied this recipe? Because you said it in an incredible way. I mean, and Shrey, I'm so sorry you can't have it because you have to keep on filming. It's gonna be over very soon. Next time you have it, okay? It's very good. Wow. मैं एग्री करता हूँ कि भाई जो जिस जगह का जो खाना होता है ना, उस जगह का टेस्ट जो है ना वो क्योंकि वहाँ से सही आता है. बेशक डिफरेंट जगहों से आप आए, डिफरेंट टेस्ट आपको आएगा, लेकिन मजा आपको वहीं से आता है. एग्जैक्टली. और भाई उसके बाद मैं ग्रिल्ड सैंडविच की बात करना चाहूंगी, पनीनी
पनीनी की बात करना चाहूंगी। ये ऐसी चीज है ना जो हमें यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती स्ट्रीट फूड में, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर पाते। इसके लिए ये हमारी लग्जरी आइटम्स हैं। लग्जरी है, हमें फाइन डाइनिंग करनी पड़ती है इन सब चीजों को खाने के लिए। वैसे तो अगर मैं फाइन डाइनिंग करूं तो मैं ज्यादा सैंडविचेस वगैरह नहीं खाती, पनीनी फिर भी ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन ये कि मुझे ज्यादातर पास्ता खाने का शौक, सो मैं पास्ता के ज्यादा से ज्यादा जो कि खाने पीने जो वो मंगवाती रहती हूँ। तो लेकिन ये कि मैं कहती हूँ कि ये एक लग्जरी है इंडियंस के लिए, नहीं इंडियंस के लिए लग्जरी नहीं है, ये हमारे लिए लग्जरी है। और इंडियंस के लिए क्या है मौसम, मतलब उनके लिए भी भैया उनके लिए एक बहुत यानी कि ऐसी चीज है जो कि उनके मतलब आपके लिए जो बड़ी आम सी चीज है वो हमारे लिए लग्जरी है। इन शॉर्ट पॉकेट फ्रेंडली है। हाँ पॉकेट फ्रेंडली है हमारे, ठीक है ना, ये बेहतर है, पॉकेट फ्रेंडली है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप जो है ना कुछ इस तरह का खाने जाते हैं ना, आपको अच्छी खासी उसकी जो है कॉस्ट पे करनी पड़ती है, फिर ही आप जाकर जो है वो सबसे पहले तो आपको स्ट्रीट फूड में ही मिलता नहीं है ना। हाँ, और अभी देखो बोर्ड भी लगा हुआ है ना, उसके ऊपर भी जो प्राइसेस हैं 40, 50, 30 जो मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ चॉकलेट चीज वो 100 है, चॉकलेट चीज सबसे एंड पे चॉकलेट चीज 100 नजर आ रही है, ठीक है। नहीं मेरे सबसे ऊपर भी कुछ है 110 रुपए, वो पता नहीं क्या है। चलो मैक्सिमम हम 150-200 लगा लेते हैं, फिर भी पॉकेट फ्रेंडली है यार, कि मतलब इतना अच्छा खाना, मतलब लोडेड विद चीज, और वो आपको स्ट्रीट फूड में मिल रहा है। सो मेरे लिए तो कमाल की। अभी भी जो सैंडविच उन्होंने जो लिया था चॉकलेट वाला, उसमें जिस तरह चॉकलेट मिलती है इंडिया में चॉकलेट जिस तरह और पनीर लगता था, अब चॉकलेट भी फ्री में मिलती है। फिर उसके बाद जो है जो उसके ऊपर भी चॉकलेट डाल के दी, तो भाई अच्छा खासा इनके अगर देखा जाए तो 2 लोग आराम सुकून से खा सकते हैं, क्योंकि मीठा तो काफी ज्यादा होगा, तो अकेला बंदा वैसे खाने को, जिनको मीठा खाने जो शौकीन होते हैं वो तो खा सकते हैं। लेकिन मैं जैसे अपनी बात करूँ, इनकी बात करूँ, मीठा इतना खाने के शौकीन नहीं, तो हम दोनों ये खा सकते हैं। हाँ अच्छा वैसे एक बात बोले, मुझे ना मुंबई की जब भी हम वीडियोस देखते हैं ना, मुझे उसकी वाइब बड़ी पसंद आती है। पता नहीं क्यों, मुंबई शहर की ना एक अलग ही वाइब है, मतलब जहां पर आपको देखते साथ लगता है कि आपका यहाँ पर दिल लग जाएगा, मतलब ऐसे वाली आपको भैया तो नहीं कहते सपनों की नगरी। एग्जैक्टली मैं भी ये सोची थी कि वो कहते हैं ना कि जो मुंबई आता है ना एक बार, फिर वो वहां से वापस जा नहीं पाता, तो ये बाकी में ऐसा होता होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं तो हमें वीडियोस देखकर ऐसा फील होता है। बाकी मैं डिप्लोमेट की बात करना चाहूंगी कि भाई जो डिप्लोमेट थे, मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि बहुत ही फ्रेंडली थे, ठीक है। और जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज और बात करने का तरीका था, किसी भी एंगल से ये बात नहीं लग रही थी कि लाइक भाई वो होता है ना कि कुछ थोड़ा सा आप में कुछ एरोगेंस है या कुछ इस तरह की चीजें, बिल्कुल भी नहीं। और देखो एक चीज ये कि वो लोगों के बारे में जो बात कर रहे थे, खानों के बारे में बात कर रहे थे, और इनफैक्ट ये भी बोल रहे थे कि जब वो जाएंगे अपनी सर्विस कंप्लीट करने के बाद तो वो मिस करेंगे, बहुत ज्यादा मिस करेंगे। और मुझे वाकई में इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने सही कहा कि चाहे कोई कंट्री कितना भी खूबसूरत हो, वहां के अगर लोग अच्छे ना हो तो आपको वहां पर इतना दिल नहीं लगता। लेकिन इंडिया जो है वहाँ वो कंट्री भी खूबसूरत है और लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो मुझे लगता है ये जो चीजें होती है ना, ये हमेशा के लिए याद रहने वाली होती है। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, मुझे नहीं लगता कि कोई अगर जैसे इंडिया में सर्विस करता होगा तो उसका दिल नहीं लगता होगा, क्योंकि इतने कल्चर है वहां पर। इनफैक्ट मौसम भी एक दिन ये बात बोल रहा था कि अगर कंट्री होना तो इंडिया जैसा, क्योंकि वहां पर बहुत डाइवर्सिटी है, इतना वाइब्रेंट कंट्री है ना कि आपको, मुझे लगता है कि हर टाइम आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कलर्स आपको नजर आते रहते हैं। तो मेरा भी दिल करता है कि वो चीज़ें ट्राई करूं, जबकि पाकिस्तानी फूड में मैंने कभी भी उस तरह से व्लॉगिंग नहीं देखी। उस तरह की व्लॉगिंग होगी, यहाँ मार्केट्स की व्लॉगिंग होगी, स्ट्रीट्स की व्लॉगिंग होगी, तो मैं जाके वो ट्राई करना चाहूँगा। कौन सा ऐसा फूड है इंडिया का जो आप ट्राई करना चाहते हैं, बहुत डेडली? सबसे डेडली जो है वो सरदार पाव भाजी, उनका एक बहुत ज़्यादा फेमस है, एक्सट्रीम फेमस है, तो मैं वही ट्राई करना चाहूँगा। मैं उनके अक्सर व्लॉग्स में मैं खुद सर्च भी करता हूँ, तो मैं वो लाजमी ट्राई करना चाहूँगा। अच्छा अभी जब ये रैंकिंग आई है तो बहुत सारे लोगों ने जो है हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के फूड में कोई खास फर्क नहीं है। फिर क्या वजह है कि इंडिया को इतनी बड़ी रैंकिंग क्यों दी गई और पाकिस्तान को इतने कम रैंक पर क्यों रखा गया? दोस्तों हाल ही में इटली के एम्बेसडर जो भारत में मौजूद है, उसकी एक वीडियो भारत में बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो सड़क पर भेलपुरी और बॉम्बे सैंडविच खा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें भारत के ज़्यादातर स्ट्रीट फूड जैसे कि गोलगप्पे, वड़ा पाव, छोले भटूरे, पाव भाजी या समोसे जैसी बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। दरअसल दोस्तों इंडियन यूट्यूबर जूलिया ने इटालियन एम्बेसडर के साथ एक कोलैबोरेशन वीडियो की थी। इस वीडियो में दिखाया गया है कि सबसे पहले इटालियन एम्बेसडर और जूलिया मुंबई की सड़कों पर स्ट्रीट फूड का आनंद लेने के लिए निकल गए, जिसमें वो सबसे पहले उन दोनों ने वेज मंचूरियन खाया। इसके बाद दोनों ने भेलपुरी खाई और आखिर में दोनों ने सैंडविच और पानीनी का लुत्फ उठाया।
इसके बाद इटालियन डिप्लोमेट ने अपने एक बयान में बताया कि वो भारतीय संस्कृति और भारतीय व्यंजनों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। उनको ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी को भी भारतीय स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। अब दोस्तों, जैसे ही ये वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया तो ये देखते ही देखते पूरे भारत में ये वीडियो वायरल हो गया। यहाँ तक कि इटली में भी ये वीडियो वायरल होते ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इटालियन डिप्लोमेट को सबसे पहले थैंक यू कहा और भारतीय स्ट्रीट फूड का आनंद लेने के लिए उसे अभिनंदन दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।